Well, I've been looking for a flat for the past month. I've been looking for a flat for the past month, and I've been going through various brokers, and there's a very, which I found bizarre. A lot of people told me that you cannot go and apply for a flat in this building because it's got some biases against Muslims. This is not only the society which I had a problem with Nibbana, but also a lot of other places in Bandra where I wanted to buy the flat. A lot of brokers said that we won't approach this building. We won't approach this building. Finally, we zeroed down on this one building which I had a talk with. My dad had a talk with the seller, and we had an agreement that he will give the flat to us. He was given a token amount. There is a certain procedure which is getting a no objection certificate, which we have to get from the society of the building. Any building that has a society needs to give a NOC that they don't object to you as a member of that society. They were not very forthcoming the first day. My parents went there to just talk about the NOC. They delayed it for 5 days, and then eventually on the 5th day, which was yesterday in the morning, I came to know that they don't want to give me the membership in the building. This was something that was told to me very earlier by a lot of brokers, a lot of middlemen who told me that don't apply in this building because they have a few biases against Muslims. They didn't come out openly and tell me this, but it is very evident. That is something that is, they're trying to shift the focus on something that we went to apply for the NOC a week back. So that is, not my concern. It's basically ownership of the flat. My parents went there to meet them. There was a society meeting going on, to which now they are saying some weird thing that they barged in. I mean, they were busy, and my parents took an appointment and went there. And then later on, they were said that come back later on. Come back after a week, and then after a week we came to know that the NOC is not being given. So this is kind of diverting the topic into something completely different. What I'm talking about is giving a basic NOC, a no objection certificate, to be a member of that building, to be part of the society and claim ownership to that flat. Well, देखिए वो तो बोलेंगे मुझे मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस किस्म की स्टोरीज़ को फैब्रिकेट करूँ, इन्वेंट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज़. ये बात आप अगर किसी भी ब्रोकर से पूछ लीजिए कि सिर्फ बांद्रा में नहीं, मुंबई में, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर सिटीज़ इन इंडिया, देयर इज़ अ सीरियस इशू कि अगर कोई मुस्लिम एक फ्लैट ढूंढना चाहता है तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे दे रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दैट मुस्लिम. समथिंग दैट आई फेल्ट दैट आई डिडंट रियलाइज दैट आई वुड हैव टू फेस right now, which I am facing. Well, देखिए मैं पहले तो एक बात बोलूँ, मैंने एक्चुअली इब्राहिम मिथाई से बात की थी. अभी उन्होंने कहा है उनका अभी ये एक एस्केप रूट है, क्योंकि अभी ये जो रिलीजन की बात है और अभी इतनी फैल गई है, तो दे ट्राइंग टू डक दिस एलिगेशन. तो अभी इन्होंने ये बहुत ही अपसर्ड नई चीज़ निकाली है. तो मैंने मिस्टर इब्राहिम मिथाई से बात की, ही इज़ पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन, और उन्होंने कहा कि यू गेट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट. So that's something I'm applying for. To the G wing of the police. To the G wing of the police. तो उनको पता चल जाएगा कि देखिए ये किसिंग करता है स्क्रीन पे, लेकिन इसका कैरेक्टर ख़राब नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, तो फिर दे दें NOC उसके बाद. अभी एक हफ्ते के बाद, एप्लीकेशन के बाद तो आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है. इन्होंने अभी कहा कि उन्होंने अभी इस इशू को डक करने के लिए, ये एलिगेशन की रिलीजियस बात नहीं है, तो उन्होंने ये नई अपसर्ड बात निकाली है कि इज़ अ सीरियल किसर, कि हमारे बच्चों पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो मुझे एक बात कहनी है कि उस बिल्डिंग में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रहते हैं जिन्होंने पर्दे पे नेगेटिव रोल्स प्ले किए हैं, बहुत बुरे आदमियों का रोल पोर्ट्रे किया है. एक मेंबर हैं जिन्होंने एक उस वक्त की बहुत ही स्लीजी फिल्म में काम किया था. तो हमने तो क्योंकि उन्होंने उस फिल्म में काम किया था, हमने कभी नहीं माना कि वो उस किस्म के शख्स हैं जो जिस किस्म का रोल उन्होंने प्ले किया था. वहाँ पे प्रेम चोपड़ा जी रहते हैं, उन्होंने इतने रोल्स किए हैं, उनको मेंबरशिप कैसे मिली बिल्डिंग में. मिस्टर अनिल धवन रहते हैं, उन्होंने चेतना की है. Well, it's a wait and watch scenario. I mean, this is something even I have not heard of. Something about getting a character certificate is something I wouldn't have thought in my wildest dreams that I'll have to do that to get a house. I mean, I purchased a place in 2007. Something I didn't have to do, but right now, I guess we'll have to wait and watch. Well, देखिए ये बात कोई खुल के कहता नहीं है, क्योंकि
उनको मालूम है कि ये बहुत ही एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, दे कांट ओपनली टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ये बात बहुत पहले मुझे पता चल गई थी बहुत सारे ब्रोकर्स से, लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बिल्डिंग में, आप अप्लाई कर लीजिए, आई विल गेट यू इन। बट इवेंचुअली देन माई फियर्स काइंड ऑफ सर्फिस्ड। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि वी विल रिजेक्ट दी NOC। वेल, बेसिक चीज़ ये है कि आप NOC क्यों नहीं दे रहे हैं? एम आई अ टेररिस्ट? हैव आई कमिटेड अ क्राइम? आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन? वाई इज़ इट कि आप NOC नहीं दे रहे हैं? बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्टेंस है कि ही इज़ सेलिंग मी द फ्लैट, आई एम परचेसिंग इट, लेकिन एक लास्ट जो एक हर्डल है NOC का, सोसाइटी नहीं दे रही है। तो दैट इज़ समथिंग दैट दे विल हैव टू प्रूव कि NOC क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 2007 में मैं एक दूसरा फ्लैट परचेज़ कर रहा था, तभी मैंने ऐसी बातें सुनी थी। बहुत सारे ब्रोकर्स थे, उन्होंने कहा कि फ़लानी बिल्डिंग में आप जाके आप नहीं ख़रीद सकते क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों के लिए एक इशू है, दे वोंट लेट यू परचेज अ फ्लैट देयर। तो ये अल्टीमेटली जो मैंने फ्लैट परचेज़ किया वहाँ तो कोई इशू नहीं था। अभी आके आई एम फेसिंग दिस। वेल, लाइक आई सेड, इट्स a very tricky situation. No one will really tell you on your face that you're a Muslim, that's why we're not giving you the flat. It just kind of spells out the kind of mindset in our country. It's something we tuck away under the carpet. But if not religion, have they You know, it would be easier if they would tell me that I'm a Muslim and they don't want to give it to me. It would be much easier, and it would be a situation that this country can tackle with. But it's been happening for so many years. बहुत सारी ऐसी Bollywood personalities हैं. There have been senior actors, there have been senior people who have been rejected bungalows and flats in Bandra, in other places in Mumbai, but they have not brought out the issue. शबाना जी के साथ में हुआ था, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। देखिए, इमरान की बात बहुत सीधी है। इमरान ने आईना दिखाया, आप आंख मूंद कर सकते हैं, आप डिनायल मोड पे रह सकते हैं और इस बीमारी से अपना दामन कुछ पल के लिए बचा सकते हैं, मगर ये गैंग्रीन करके आप सबको खा जाएगा, ये उनका मानना है। और इन्होंने एक इशू जो है इनसे लार्जर है, सिर्फ इनके फ्लैट की बात है ही नहीं। बात यह है कि आए दिन मुंबई में ये घटता है और हम ये दावा करते हैं कि हमारा एक कॉस्मोपॉलिटन फैब्रिक है, ये हमारी शान है कि यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, मगर जब आए दिन ये होता है तो हम चुप रह जाते हैं। वेल, कल मैंने जब NOC मुझे नहीं मिला तो मैंने मिस्टर इब्राहिम अथाई से बात की और ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने पहले एक तहकीकात की, वहाँ से पता किया कि ये क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अभी वहाँ पे उस तहकीकात के बाद वहाँ पे एक लेटर भेजा जाएगा, देयर बी अ नोटिस सेंड टू द सोसाइटी एंड देन बट दे बीन वेरी सपोर्टिव। देखिए, ये अगर उन्होंने कहा होता तो ये इस तरह कहते कि वहाँ पे उनका मेंबर नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते हैं, वील हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज। बट द आंसर आई गॉट येस्टरडे was that हम आपको NOC नहीं दे सकते। ये नहीं था कि we are going to give it to you later on. There's a difference between that. Well, यही तो प्रॉब्लम है कि अगर आप एक religious context पे आप किसी को फ्लैट नहीं देंगे, then what secularism are we talking about? I mean, what is it? Am I, like I said, am I a criminal? Have I done something illegal? Is there something wrong? But that's not the issue here. It's not about being vegetarian or non-vegetarian. It's a basic issue of me being a Muslim. And that needs to be clear, and the people in the building are evading the situation, but that's... मुझे तो ताजुब इस बात का हो रहा है कि कटघरे में आपको उनको खड़ा करना चाहिए, आप इसको खड़ा कर रहे हैं। जिसने आईना दिखाया है, जिसने विसल ब्लो की है, उसको तो आपको गले लगाना चाहिए, क्योंकि ये काम आपका है। काम आपका है कि आप कड़ी नज़र बनाए रखें और दोनों पक्ष को सुनकर वो जो माइनॉरिटी कमीशन में केस गया है, अब माइनॉरिटी कमीशन बनी इसीलिए है ना। माइनॉरिटी कमीशन सरकार ने क्यों बनाई है? क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे होते हैं और एक न्यूट्रल बॉडी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है जो दूध का दूध, पानी का पानी क्या है बता देगी। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.